मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लग्जरी लाइफ इनकी आम जिंदगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां से ये बड़ी कीमती हैं ये कपल। तो चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उन्हीं को आपको स्क्रीन पे लेके आता हूं। अभी टीडी इंडिया में है और सुपर्णा दत्ता अमेरिका में है। दोनों का टाइम जोन अलग अलग है, लेकिन आपके लिए जो इतने लोग यहां बने हुए हैं, हिलना मत, बने रहना, सीखने के लिए तैयार हो जाइए। हम बुलाते हैं अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्लोबल लीडर कपल को, टीडी एंड सुपर्णा दत्ता। Oh my God. अरे नियाज, क्या होस्टिंग! सुभाषी, आई एम वरीड दैट इसको बॉलीवुड ले लेगा, ओके, एज द नेक्स्ट आरजे और एमसी, और कई इंडियन आइडल में दिखाई देगा. बट आई विल टेल यू, वी आर एक्साइटेड दैट दे आर diamonds in this organization. Niaz and Rubina, thank you so much for hosting this. क्या इवेंट! पूरा मेरा तो एकदम मतलब रोंगटे खड़ा हो गया. मतलब कैसे पहले फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कैसे ये सब स्पीकर आज तो धमाका मचा दिया. आई विल टेल यू, लाइक everybody who spoke today, okay, was at their best. And and finishing with Subhashish and Sujata, okay, talking about this structure, mass, spin, everything. Oh my God! I mean, only they can do this topic so well, because they have the structure, numbers, and everything what they're talking about. जो भी बात किया एकदम अपना experience है. So, and everybody who spoke before that was Kiriti Shashwati, and then I think before the Anirudh Moha. I mean, all these people are huge organizations. I mean, Kiriti and Shashwati founders Double Diamond. Oh my God, kya business. Okay, no question. Of course, Subhashi and Sujata, one of the mega EDCs with one of the that's all the structure is so valuable. And of course, before that they spoke Anirudh Moha Ghosh. Oh my God. I mean, that's the mega diamond whose organization is known by their mass and numbers. Okay, like Amway personally knows them, okay, so well. My upline, Kanti and Lata, and everybody knows all these couples, no question. And then before that was, I think, Prashantoda and Gitadi, okay, was amazing. What a talk. Okay, I think ये talk हमने Silvers meeting में भी सुना, और उसके पहले अभिजीत एंड सागरिका spoke so well on all the different things. And I know बहुत डायमंड्स हम लोग को सुनना था, लेकिन टाइम वाज लिमिटेड जूम में, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कुछ लोग के बात करेंगे. और श्योरली वी हैव ऑल द डायमंड्स जो रिप्रेजेंट करता है एडीएसडी टीम को. ऑफ कोर्स वी आर मिसिंग आशीदावदा शेतादी. आशीदावदा शेतादी का बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन है ऑन संडे, हम जाएंगे मिलने. और वी हैव Bishwajit and Shoroshi, okay, who represents ADSD organization, Bishwajit and Paulomi, okay, Nirmal and Duda and Dipalidi, okay, all these diamonds, in the organization, jo chamakta hai, okay, though they made this organization known around the world. Shantanu and Bornali, Manik and Gopa, of course, Niaz and Rubina, okay, aaj ka host, Devapi and Reena, okay, Kaushik and Shubha, everybody has such an amazing business. Partho Devika, of course, Abhijit and Sagorika, I mentioned, Prashantata and Gita, Di and Kiriti and Shashwati, Anirudh Moha, Subhash and Sujata. And of course, ये जब डिसीजन होता है, कोर लीडरशिप एक है ईडीएसडी का, उसमें है देवाशीष एंड मीता सरकार, उज्जवल एंड मिठू एंड अचिंत एंड संपा, Shampa and Sampa bola is Hindi ho gaya na, Shampa basically. And of course, Aritra, you are the technical guru of this team, और बहुत अच्छा ये पूरा setup हो रहा है. So proud of the Ashitavada Shetadi team. We are blessed to basically represent them, no question, okay, around the world. So very proud. One thing which I want to tell you is that ये बिजनेस का ऐसा बिजनेस है ना, इसके नेवर फील सॉरी. ओके, कभी कभी ऐसा होता है, आप बिजनेस को देख के आप
अपना बिजनेस को देख के एमवे को इवैल्यूएट करते हो। आपका बिजनेस के साथ एमवे का कोई संबंध नहीं है। एमवे बिजनेस इज अराउंड द वर्ल्ड, 100+ कंट्रीज। अब कभी कभी हम अपना बिजनेस देख के सोचते हैं एमवे भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये पैसा मिल रहा है। Okay, and also, you don't have to answer to other people. Like, it's like crazy. Like when I actually feel very happy when people talk stupid about this business. कभी कभी वो एमवे ये है, हम हंसता है देख के, सुन के, है ना, क्या मतलब, क्योंकि कभी मूर्ख लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में हम बिलोंग करते हैं, इट्स राइट नाउ $205 बिलियन। हम लोग जो इंडस्ट्री में है, आप कौन इंडस्ट्री में काम करते हो, आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये इंडस्ट्री इज $205 बिलियन and it is going to be $302 billion business. So if somebody asks me क्या business करते हो, I said I am a part of a $302 billion industry. So okay, you don't have to, it's like अगर आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मैं मीट किया और उसने बोला दैट आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो आप कभी नहीं बोलता है वो हमने भी ट्राई किया था, ओ आई नो इट डजंट वर्क। लेकिन एमवे अगर आप बोलेंगे ना, कुछ लोग का ऑटोमेटिकली वो आंसर आ जाएगा, मतलब ऐसे, ओ हमने वो ट्राई किया तो वो काम नहीं, तो चुप करके बैठना। समटाइम्स यू आर क्यूट व्हेन यू आर म्यूट, right? So sometimes it's very important to understand that you are now we are the top business in the world, or doesn't matter क्या हो रहा है इकोनॉमी, क्योंकि AI cannot eat vitamins, right? So इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो AI रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये जो रिलेशनशिप AI cannot replace, चैट जीपीटी cannot replace this। जॉब रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये रिलेशनशिप कैसे रिप्लेस करेगा? हमारा जो सिलेबस मीटिंग हुआ, आई सी ऑल ओवर सोशल मीडिया पिक्चर्स एंड दिस एंड एवरीथिंग एंड ऑल दोस पीपल आर, ये क्या कौन रिप्लेस करेगा? सो वी आर सो एक्साइटेड। ओके, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। बहुत अच्छा हमारा जो जो समर कॉन्फ्रेंस है, मतलब विंटर कॉन्फ्रेंस भूल जाता है। ओके, विंटर कॉन्फ्रेंस सिल्वर्स अप हुआ, इट इज वन ऑफ अ काइंड। 600 का ऊपर सिल्वर्स पूरा एक सिस्टम में नहीं होता है, और ये एक LOS में आ गया, और 2 सेशन फंक्शन। ओके, और भी होता, ओके, लेकिन हम लोग इस टाइम लिमिट किया 2 सेशन में, एंड इट इज इन द ईस्टर्न रीजन हुआ। अगर बाकी रीजन में करेंगे तो लोग कहां कहां से आया, 20, 25, 30 घंटा। Okay, we feel so proud. We are proudly sponsored by Tushar and Devjani Chakravarti, हमारा founders Emerald, very very thankful to them. और we are mentored और maintained, कभी कभी हम बोलते हैं maintained by कांतियां लतागाला, क्योंकि कभी कभी mentorship नहीं था, वो maintain किया मेरे को। इतना तंग किया था एक टाइम में, that ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है उन्हें, लेकिन वो patiently। और कांति लता गाला belongs to Bill and Peggy organization, or just for information, okay, there are only few LOS in the whole of Amway, तो जो डग डिवॉस पर्सनली जानता है, okay, and that is one of them is कांति लता गाला, क्योंकि they have one of the biggest organization in the whole world of Amway। okay, सब जगह में, okay, around the country, around the world diamonds है। so we are really privileged that we have the blessings of that couple for this organization। so I want to have Suparna. It was good to see that Suparna could plug in from US, so different time zone but same background, okay, ADSD। so here is Suparna, okay, to speak about something, and then I will come back। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और सबको देखकर यहाँ पे जो लोग हमारे यहाँ पे डायमंड अप जो मौजूद है हमारे इधर, वी आर सो प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू।
टीडी ने अभी उनके सारे उनके बारे में अभी अभी बताए। एंड अभी कुछ दिन पहले आप लोग का सिल्वर अप और कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर फंक्शन हुआ, विंटर कॉन्फ्रेंस, और बहुत सारा अच्छा फीडबैक आ रहा है। देयर वाज सो मच एक्साइटमेंट एंड पीपल हैव मेड न्यू कमिटमेंट, न्यू डिसीजन। सो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज यहाँ पे आई नो बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर द कंट्री, जो लोग यहाँ पे यूट्यूब में वो लोग सब मौजूद होके सब एकदम अच्छी तरह से सुन रहे हैं। आई एम श्योर हमारे पहले जितने भी स्पीकर्स आज आपके सामने इधर आकर आपसे उन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ नॉलेज आपके साथ जो उन्होंने शेयर किया, आई होप ऑल ऑफ यू हैव लिसन्ड वेरी इंटेंटली और बहुत सारे नोट्स आपने लिखा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो ये क्या है हमारा, आज तो ऑलरेडी 14 जनवरी हो गया। आज मकर संक्रांति है, तो सबको सबके घर में शायद बंगाली में बोलेंगे मिष्टी पीठे, बहुत कुछ अच्छी अच्छी वो खाना आप लोग को सब मिठाई सब खाने को मिला। हम इधर से सिर्फ तस्वीर ही देख रहे हैं, बट आई नो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे आज त्योहार आज मनाया जा रहा है, तो सबको उसके लिए बधाई हो। तो अभी देखिए साल का 14 दिन हो गया। हम लोग 1 जनवरी के लिए हम लोग 31 दिसंबर से बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हम सबको जैसे ही क्लॉक में 12 बजेंगे हम सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, राइट। लेकिन जब हम हैप्पी न्यू ईयर हम बोल रहे हैं सभी को, जब सबको हमने विश किया, तो हम क्या दिल से हमने बोला कि हैप्पी न्यू ईयर होगा? आर वी रियली हैप्पी? तो ये साल एक डिसीजन लीजिए कि आप सचमुच यू विल बी हैप्पी, और ये साल को आप हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। न्यू न्यू का मतलब कुछ आप चेंजेस लाएंगे अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, ताकि आप सचमुच लोगों को बोल सकते हैं कि जब हमने 1 जनवरी को न्यू ईयर बोला तो ये सचमुच हैप्पी न्यू ईयर है। नहीं तो फिर अगर हम पुराना सोच से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर हैप्पी न्यू ईयर का कोई मायने नहीं है। तब हम लोगों से बोल सकते हैं कि हैप्पी ओल्ड ईयर, क्योंकि सेम ही ईयर, और हैप्पी सेम ईयर, हैप्पी ओल्ड ईयर। लेकिन हम ये साल हम सबसे यही बोलेंगे कि ये सबसे 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी हैप्पी, एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अभी देखिए अगले साल 2027 में अभी एमवे इंडिया में, एमवे इंडिया का 30 इयर्स हो जाएगा। 2028, राइट, या 2028 में 30 इयर्स होगा। और फिर एमवे ग्लोबली इट विल बिकम 70 इयर्स। अभी 70 इयर्स का जो एमवे का जो सेलिब्रेशन होगा वो होगा लंदन में। आप लोग बहुत लोग जो लोग एमवे के ट्रिप्स में आप पहले आप यू हैव गॉन, यू नो, आप लोग को मालूम है कि कितनी अच्छी तरह से वो सबका सेलिब्रेशन करते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे लोग अभी थाईलैंड से वापस आए, इतना बढ़िया से उन्होंने हमारा केयर किया, इतना अच्छी तरह से हमारा देखभाल किया, दैट एमवे ऑलवेज ट्रीट्स यू इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कोई भी ऐसा होटल में हम लोग को नहीं ठहराते, हमेशा 5 स्टार 7 स्टार होटल में हम लोग को ठहराते। और आपने डेफिनेटली अपने अपलाइन से आपने तो पिक्चर्स देखे होंगे, आपने सुना होगा कि किस तरह से वो सेलिब्रेशन हुआ था। अगले साल, अभी ये साल में फिर मलेशिया होगा, फिर उसके बाद और बहुत 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 कंट्रीज में एमवे का सेलिब्रेशंस होगा। तो ये साल ये जो आपने जो डिसीजन लिया, ये डिसीजन नंबर 1 ये कीजिए कि आई विल बी अ न्यू पर्सन। 1 जनवरी से आज 14 दिन तो हो गया, विल आई बी अ न्यू पर्सन टू बिल्ड द बिजनेस। उसके साथ साथ एक नया एटीट्यूड के साथ हमको बिजनेस को बढ़ाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में 13 तारीख को क्या हुआ उसको उसके बारे में सोचकर हम कुछ नहीं कर सकते। जो नहीं हुआ उसको भूल जाइए, क्योंकि ये साल हम लोग नए एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ हमको नया गोल्स, आई एम श्योर आप लोग ने ये साल के लिए अपना नया गोल्स लिखा है। ये फिजिकल ईयर में आप क्या पिन अचीव करना है उसको भी आपने लिख कर, वो दिमाग में मत रखिए, उसको कागज पे उतार कर लिखिए, और अपलाइन के साथ जरूर उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, ताकि अपलाइन को भी मालूम पड़े कि ये हमारे टीम में जो एबीओ है वो किस तरह से ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है, ताकि आपको वो हेल्प कर सके। न्यू रेजोल्यूशन,
लेकिन एक बार जो डिसीजन लिया ना, एक बार टीडी और हमने एक बार जो डिसीजन लिया कि हमको ये बिजनेस करना है, तो उसके बाद वहां से हम हिले नहीं। ऐसे नहीं कि हर दिन हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमको आज करना है, कल नहीं करना है। वो यो बिजनेस नहीं होना चाहिए। एक बार डिसीजन लिया तो ले लिया। आप जिन लोग के पास, दोज ऑफ यू हैव पेरेंट्स, जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो आप पापा बन गए, आप मम्मी बन गए, तो वो तो डिसीजन तो लेना नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्रॉब्लम है तो बोलेंगे आज से हम पापा नहीं है, आज से हम मम्मी नहीं है। आप पापा मम्मी, एक बार बच्चा हो गया, यू हैव टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको उसको आगे लेकर ही जाना है। तो ये बिजनेस में भी जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, यू आर नॉट देयर पेरेंट्स, लेकिन इन सम वे यू आर देयर पेरेंट्स बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उनको हेल्प भी करना है ये बिजनेस में। देखिए 1 जनवरी को बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं कि ये साल ना हमको बहुत हेल्दी होना है, हमको वेट घटाना है, तो लोग जिम में जाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ भी देखा कि 1 तारीख को जिम में पार्किंग लॉट में एक भी जगह नहीं है, तो बहुत दूर में जाकर हमको गाड़ी पार्क करना पड़ा। लेकिन अभी 2 हफ्ता हो गया, हम जब जिम में जा रहे देख ले, अरे इधर तो काफी सारा जगह खाली है। तो हमारा बिजनेस वैसा नहीं होना चाहिए कि डिसीजन लिया, फिर कुछ दिन के बाद, कुछ वीक के बाद, अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा कल करेंगे, तो कल कल करते करते वो कल कभी नहीं आता। सो आज आपको वो डिसीजन लेना है कि आज से हम, आई विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूज। ओके, इस ये साल मेक डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट योर फ्रेंड, कि आप डिसिप्लिन के साथ ये बिजनेस को करेंगे। देखिए लाइफ में कहीं कोई भी जगह में आपको अगर तरक्की करना है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ओके, बिकॉज कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि अच्छा डिसिप्लिन सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर डिसिप्लिन के हिसाब से आप बिजनेस को करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसका जो एंड में आप सही तरह के से अगर बिजनेस करेंगे, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट। और जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, वन थिंग आई विल टेल यू दैट देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस इन दिस बिजनेस। जब हमने ये प्लान देखा था आज से काफी साल पहले, अगर हमारे अपलाइंस हमको ये बोलते हैं कि अच्छा तुम ये करो वो करो और जल्दी जल्दी आप यू विल बी सक्सेसफुल, तो अब हमको आई वुड बी वेरी स्केप्टिकल कि कोई भी आदमी आज जिंदगी में बड़ा नहीं हुआ ओवरनाइट। उसको धीरे धीरे उसको मेहनत करना पड़ता है। जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। आप कहीं भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाते हैं, तो आप क्या एकदम एक फर्स्ट फ्लोर से 10 स्टोरी तक एक बार छलांग मार के उठ सकते हैं? नहीं, आपको 1 से 2 से 3 से तब जाके आप एकदम 10th फ्लोर में पहुंचेंगे। तो ये बिजनेस में भी आपको 1 स्टेप अ टाइम आपको आगे बढ़ना है। और कभी कभी क्या है, बिजनेस में आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, दैट इज मेक इट योर, क्या बोलेंगे आप, डोंट वरी अबाउट फेलियर्स एंड डोंट वरी अबाउट रिजेक्शंस। अगर वो आप उससे डरेंगे तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, सो ये बात से आप डरिए कि अगले साल हमको जो लेवल पे हम अभी है, उस लेवल पे हमको नहीं रहना है। तो उससे आपको डरना चाहिए कि आई डोंट वांट टू बी एट द सेम प्लेस एट द सेम लेवल नेक्स्ट ईयर। इसीलिए आपको मेहनत करना है। और देखिए लाइफ का एक बहुत वेरी सिंपल फॉर्मूला है। जब आप पीछे देखते हैं तो वट एवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू गॉड कि हम जिंदा हैं, हम बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं। सो एवरी डे व्हेन यू गेट अप, बी ग्रेटफुल फॉर 5 गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू योर लाइफ। 5 गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू योर लाइफ। एंड जब आप आगे की ओर देखेंगे, भविष्य में क्या होगा, वी डोंट नो, राइट? बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रस्ट इन गॉड। व्हेन यू लुक बैक, थैंक गॉड, बी ग्रेटफुल। व्हेन यू लुक फॉरवर्ड, ट्रस्ट इन गॉड। और एक से अभी आप लोग सबको एक होमवर्क देंगे। सबके पास एक शीशे का बोतल, आप अगर घर पे है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो खरीद के लाइए। और एवरी सैटरडे या संडे जब भी आपको मौका मिलेगा, 5 मिनट लेकर एक जगह पे बैठकर राइट 5 ऑफ द गुड थिंग्स दैट यू गॉट दिस वीक। तो आज क्या है, बुधवार है, संडे के दिन एक कागज पर लिखिए व्हाट आर द 5 गुड थिंग्स दैट यू गॉट इन दिस वीक। और नेक्स्ट 52 वीक्स में आप, अभी हालांकि 52 वीक्स तो बचा नहीं है, लेकिन पूरा साल में एवरी वीक में आप वो जार में लिखते रहिए कि व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट यू गॉट।
जब वो 31 दिसंबर को जब आप अगेन सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, तो वो बोतल को खोल के आप देखिए कि इन लास्ट 365 डेज में आपने कितना कुछ थिंग्स यू हैव गॉट फॉर विच यू हैव टू बी ग्रेटफुल। यू नो इट विल चेंज योर माइंडसेट। जब आप खुशी खुशी बिजनेस करेंगे, आप देखेंगे रिजल्ट्स भी खुशी खुशी आपको मिलेंगे। बिकॉज आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पॉजिटिव सोचेंगे इट्स द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन यू थिंक पॉजिटिव गुड थिंग्स विल हैपन, व्हेन यू थिंक नेगेटिव यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव। सो हमेशा पॉजिटिव की ओर सोचते रहिए। तो यहाँ पे तो आई नो दैट बहुत सारे लोग हैं जो लोग शायद अभी पहली बार आप ये कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। हो सकता है कुछ यहाँ पे 3%, 6%, 9% होंगे। तो आपका गोल क्या है अभी? अभी अगर नए हैं तो आपका गोल क्या है? अभी सुभाषिश ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि नया आईबीओ का क्या गोल है। पहले आपको एसएसआई होना है, आपको फिर उसके वहां से आपको बीएफआई जाना है, उधर से फिर आपको बीबीआई जाना है, आपका स्ट्रक्चर बनाना है। अल्टीमेट गोल क्या है? वो 10,000 पीवी को हासिल करना, अच्छी तरह स्ट्रक्चर के साथ, विड्थ और डेप्थ के साथ। इवेंचुअली हमारा गोल क्या है? टू गो प्लैटिनम। प्लैटिनम इज द फर्स्ट स्टॉप। वैसे प्लैटिनम जाने के बाद आप तो स्टॉप नहीं करेंगे, लेकिन प्लैटिनम इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे जाने के लिए आपको अच्छी तरह से मेहनत करना है। हो सकता है सम ऑफ यू ऑलरेडी आर इन प्लैटिनम क्वालिफिकेशन। अगस्त 2026 में शायद आप प्लैटिनम हो जाएंगे। लेकिन आपका अगर ये साल में प्लैटिनम नहीं आप हो सके, तो एटलीस्ट कम से कम ये गोल बनाइए कि 2026 2027 तक आपको प्लैटिनम जाना ही है। अभी उसको बैकवर्ड आप काम कीजिए। 31 अगस्त 2027 में आपको अगर प्लैटिनम बनना है, तो उससे आप देखिए अगस्त में कैसा वॉल्यूम होगा, जुलाई में कैसा होगा, तो वैसे करके बैक ट्रैक करके देखिए। और जो भी हम बता रहे हैं अपने अपलाइन के साथ डेफिनेटली काउंसिल करके, डेफिनेटली उनके साथ उनका सलाह लेके अपना पूरा गोल बनाइए। हो सकता है सम पीपल विल स्टार्ट क्वालिफिकेशन इन सितंबर ऑफ 2027, लेकिन एक बार अगर आप बिजनेस को सही तरह के करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप क्वालिफाइंग। सो प्लैटिनम हो गया। उसके बाद क्या गोल है कि आप एएलएस के लिए जाएंगे। जैसे हम लोग अभी सब थाईलैंड से वापस आए, फिर मलेशिया जाएंगे और बहुत सारे और भी ट्रिप्स है। फिर एएलएस जाने के बाद क्या है? नेक्स्ट गोल है आपको सैफायर, एमरल्ड, एंड इवेंचुअली गोल क्या है? आपको डायमंड एंड बियॉन्ड जाना है। यहाँ पे कोई भी लोग, आई डोंट थिंक दैट हु हैव ज्वाइन द बिजनेस, कोई 100 पीवी जिंदगी भर रहने के लिए बिजनेस कर रहा है, राइट? सबका गोल, अल्टीमेट गोल क्या है? कि डायमंड, हमको डायमंड जाना है। आई एम श्योर उसी सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं। ओके उसमें आपको वंस यू गो टू डिफरेंट पिन लेवल्स, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा। आपको बहुत सारे आपके जो ड्रीम्स और गोल्स जो है वो आपको फुलफिल करने का भी मौका मिलेगा। अभी देखिए आप लोग हो सकता है सभी लोग को मालूम ना हो, हम दोनों यहाँ पे दो बड़ी कंपनी में काम करते थे। हम थे सीनियर सिस्टम्स एनालिस्ट यहाँ पे जॉनसन जॉनसन में नौकरी करते थे। टीडी यूज टू वर्क फॉर एटी बेल लैब्स। तो हम जब ये बिजनेस देखे थे आज से काफी साल पहले, कभी कभी हमको ये दिमाग में आता था कि हम क्यों ये एम्बे का बिजनेस करेंगे? यहाँ पे हम मास्टर्स करके इतना अच्छा नौकरी कर रहे हैं, क्यों हम ये बिजनेस करेंगे? लेकिन उस समय पता नहीं था कि बाद में हाउ द होल वर्ल्ड इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग टू चेंज। कि कभी कभी हम इंडिया का इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, कभी कभी हम अमेरिका के इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, सारा दुनिया भर के इकोनॉमी को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। उसके लिए बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अपने घर का इकोनॉमी के बारे में कब सोचेंगे? बाहर के लोगों को छोड़िए, अपने इकोनॉमी के बारे में सोचिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर आपका कैसा रहेगा, आपका मंथली फाइनेंशियल्स कैसा रहेगा। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि आपका फाइनेंसियल्स के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसको है? आप अगर हस्बैंड वाइफ है आप दोनों, और फिर जो आपके अपलाइन है, जो आपको मेंटर कर रहे हैं, जो आपको कोच कर रहे हैं। जो लोग आपका बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है, दे हैव नो इंटरेस्ट। आप महीना में ₹1,00,000 बनाइए, 50,000 बनिए, उससे उनका कोई लेना देना ये नहीं है। लेकिन अपलाइन का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या है? ताकि यू बिकम सक्सेसफुल एंड यू बिकम प्रॉफिटेबल इन द बिजनेस। इसीलिए अपलाइन के साथ जुड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हैविंग द वर्क एथिक्स, सी आपका हाउ यू विल बिल्ड द बिजनेस।
आपका जब हम टीवी देखते हैं क्या करते हैं, रिमोट कंट्रोल हमारा हाथ में होता है, हम हमेशा वो रिमोट कंट्रोल को प्रेस करते हैं, कोई दूसरा मूवी देखते हैं, कोई दूसरा चैनल देखते हैं। लेकिन आपका लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, आपके बॉस के हाथ में है, आपका फैमिली के हाथ में है, आपके रिश्तेदार के हाथ में है? नहीं, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर। तो आपको देखना है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट, आर यू द हार्डेस्ट वर्कर एबीओ इन योर टीम? आपका वर्क एथिक्स ऐसा होना चाहिए कि आपको देखकर पीपल शुड गेट मोटिवेटेड। हम बहुत सारे बड़े बड़े बात हम तो बोल सकते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन लोग हमारा काम देखकर दे विल बी मोटिवेटेड। लोग विल पीपल विल नॉट बी एबल टू हियर व्हाट आई से, बट दे विल वॉच व्हाट आई एम डूइंग। तो आप किस तरह से काम कर रहे हैं, दे यू शुड बी द हार्डेस्ट वर्कर एंड द मैक्सिमम प्लान श्योर ऑफ योर टीम। कितना ज्यादा, जैसे अभी अनिरुद्ध ने बोला ना कि आई मे नॉट बी द बेस्ट प्लान श्योर, बट आई विल आउटवर्क यू इन द नंबर ऑफ प्लान्स आई विल शो। कि जो द पर्सन हु शोज द मैक्सिमम प्लान, they will be eventually the one to win. So be an example to the to your team. देखिए, आप बैंक में आप पैसा, यू कैन क्रेडिट मनी इन द बैंक, लेकिन यू नो व्हाट यू कैन नॉट क्रेडिट इज टाइम। पैसा आप जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन टाइम बैंक में आप टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ये मालूम है, टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस। सबका एक दिन है जब हमने जन्म लिया, और सबका एक लाइफ में एक दिन आएगा व्हेन वी विल नॉट बी हियर। लेकिन वो टाइम में जब से आपने डिसीजन लिया आज से, और व्हेन एवर यू टुक द डिसीजन, वो जो टाइम बैंक आप में आपके साथ है, वो टाइम से आप क्या, वो टाइम में आप क्या हासिल करेंगे। नॉलेज, अभी प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी प्रशांत तथा गीता जी ने अभी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू नॉलेजेबल अबाउट द प्रोडक्ट्स? आप अगर आपको अगर हम अभी स्टेज पे लाएंगे और बोलेंगे ये प्रोडक्ट के बारे में आप बात करो, आप क्या कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं? उससे पहले तभी आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे व्हेन यू आर बिकम 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं तो हम बोलेंगे ये डेली डेली प्लस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमने अगर यूज नहीं किया तो हमारा वोकेबुलरी वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू बी 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट। देखिए, मोबाइल स्टोर में अभी कभी भी आप सैमसंग या एप्पल या कोई भी फोन पे अगर दुकान में अगर जाएंगे, वो सेल्समैन जो है वो आपको, दे विल बी एबल टू टेल यू ऑल द डिफरेंट फैक्ट्स एंड यूजेस और फीचर्स ऑफ द फोन, राइट? तो इसी तरह वो अच्छी तरह से आपको मोबाइल फोन्स बेच सकता है, लेकिन उसके लिए मोबाइल स्टोर है। आपके पास एमवे का स्टोर है? हाँ, आप एमवे का स्टोर में हालांकि जा सकते हैं, जहाँ जहाँ आपका एमवे स्टोर है, लेकिन आपके घर में अगर प्रोडक्ट नहीं है, आप किस तरह से लोगों से बात करेंगे? हाउ विल यू टेल दैट यू आर रियली एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर? दैट विल ओनली कम व्हेन यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो लोगों को उसके बारे में सिखा रहे हैं। अभी आपको लोगों के घर घर जाना है। जूम तो ठीक है, आज अच्छा है, यूट्यूब अच्छा है, आपको सुनने का मौका मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कहाँ कहाँ पे आपको लोग नहीं मिलेंगे? आपके घर के चार दीवारों के अंदर। घर से वो छिटकनी खोलकर आपको बाहर जाना है, बाहर जाने से ही आपको लोग मिलेंगे, नहीं तो नया लोग आपको नहीं मिलेगा। तो अभी सभी का गोल है ये साल में और भी कुछ नया लेग्स को लॉन्च कीजिए। आई डोंट थिंक विथ का, आई मीन वी आर नेवर वाइड एनफ, वी कैन ऑलवेज गो एंड स्पॉन्सर सम न्यू पीपल। और क्या है ना, जब आप नए लोगों के साथ काम करेंगे, एक्साइटमेंट, आपका मजा ही कुछ ज्यादा है। इट्स ऑलवेज मोर एंड मोर एक्साइटिंग। एंड वन थिंग आई विल टेल, दैट डोंट वरी। अगर बिजनेस में कभी कभी ऊंच नीच अगर हो गया, एक शब्द हमेशा दिमाग में रखिए, डोंट वरी। इसमें ये बिजनेस में कोई इमरजेंसी नहीं है, हाँ, लेकिन इमरजेंसी है बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। सो कुछ भी अगर नहीं होता है, डोंट वरी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समथिंग टेरेबल इज गोइंग टू हैपन। सो सही तरीके से बिजनेस बिल्ड कीजिए। एंड आई विल एंड विथ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। एक राजा था, वो अपने किंगडम में
सब अपने मंत्री और सब लोगों फैमिली मेंबर के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था। और सर्दी का मौसम था, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी जब बहुत ठंड होती है ना, तो बाहर हम लोग धूप में बैठते हैं ताकि वी कैन गेट अब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट फ्रॉम द सन। तो उसने अपने सभी जो उनके किंगडम में जो लोग वहाँ पे उनके साथ वहाँ पे मौजूद थे उनको बोला कि पता है हमको हम बहुत परेशानी में है। बोले क्या हुआ राजा साहब? बोले हमारे पास ना दो ठो यहाँ पे शीशे का टुकड़ा है, एंड आई डोंट नो इसमें से हमको पता नहीं चल रहा कि इसमें से कौन सा ग्लास का है और कौन सा असली डायमंड है। तो यहाँ पे जो लोग हमको सही तरह के हमको अगर आप बता सकते हैं कि कौन डायमंड है और कौन ग्लास है, तो उसको यू विल गेट अ बिग रिवॉर्ड। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि कैसे बताएंगे, दोनों को देखने से तो एक ही लग रहा है, दोनों ही तो दे आर लुकिंग लाइक ग्लास, कैसे बताएंगे? तो कुछ लोगों ने ट्राई किया, बोला हाँ नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम तो नहीं बता पाएंगे। तो कुछ देर बाद एक आदमी आता है राजा साहब के पास। बोले राजा साहब, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ बताने के लिए। तो सब लोग हंसने लगे, अरे तुम तो अंधा हो, तुम कैसे बता सकते हो? तो राजा साहब ने बोला कि तुम लोग तो कोई कर नहीं पाए, चलो इस बंदे को हम मौका देते हैं बोलने के लिए। तो वो दोनों ग्लास को अपने हाथों में लिया, एक में दो, टू ग्लासेस इन टू पीसेस ऑफ ग्लास इन टू हैंड्स, और धूप के पास गया। और धूप के पास जाकर उसने दोनों को सामने रखकर उसको ऐसे करके पकड़ा। तो उसके बाद आकर राजा साहब को बोला कि राजा साहब मेरे को पता है ये वाला डायमंड है और ये वाला ग्लास है। तो राजा साहब बोले कि कैसे तुमको पता चला कि कौन सा डायमंड है कौन सा, हाउ डिड यू एबल टू डिस्टिंग्विश? सो उसने बोला, इट इज वेरी सिंपल सर, द कोल्ड वन इज डायमंड एंड द पीस विच हैज बिकम हॉट इज ग्लास। So the person who keeps his cool in odd situation, in unfavorable situation, is the real diamond and gets success in life. And जो बंदा थोड़ा सा कुछ लाइफ में कुछ चैलेंज आए, वो ऊपर नीच वो दे घबरा जाते हैं, दे लूज हिज कूल, दे बिकम एंग्री, दे बिकम अपसेट एट द स्मॉल थिंग्स, दे ब्रेक लाइक अ ग्लास। तो ये साल में विल यू बी अ ग्लास और विल यू बी अ डायमंड? डिसीजन आपके हाथ में है। तो चलिए ये साल हम लोग कुछ ऐसा करते हैं ताकि एकदम धमाका बिजनेस बिल्ड करेंगे, ताकि इंडिया का कोने कोने में हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा। और विद दैट आई विल गिव इट टू माय ऑसम हस्बैंड। देखिए उनका कमिटमेंट, देखिए हम लोग 25 तारीख को वापस आए। जैसे ही पता चला कि वहां पे एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, विंटर कॉन्फ्रेंस, फिर से टिकट खरीदा, फिर से गया ताकि ही कैन बी विद द टीम। हालांकि हम आ नहीं पाए, लेकिन अगली बार जब भी कॉन्फ्रेंस होगा हम लोग जरूर वहां पे मौजूद रहेंगे। विद दैट ओवर टू टीडी। All right. Wow. Wow. Good. Good. A lot of good nuggets. Great. And the diamond story with the glass. Really, like, you should not be breaking like a glass. Fantastic. But, continuing with the same thought process, was as Sparna was mentioning about that, like you have to grow. And I will give you a practical story. क्योंकि ये बहुत होता है आजकल, क्योंकि लोग बोलता है ये बहुत ये मेरा टीम में था, और उसके बाद 3-4 साल के बाद वो किसी और टीम में ज्वाइन किया, मतलब सब रूल के मुताबिक। ओके, मतलब वो पूरा इनएक्टिव हो गया था, छोड़ दिया एंड एवरीथिंग, एंड ज्वाइन किया था। तो हम ऐसे किसी को पूछा, लाइक वो बोलता है हाँ हमने ज्वाइन किया, उसके बाद पुराना अपलाइन मेरे पास आया और मेरे को पूछा दैट आपने नो एक्चुअली वो ज्वाइन नहीं किया, सॉरी वो पहले ज्वाइन नहीं किया था, वो नया ज्वाइन किया, लेकिन उसने पहले उसको कोई बिजनेस बोला था, लेकिन वो 1 साल 2 साल हो गया, वो ज्वाइन नहीं किया उसके साथ, लेकिन इसके बाद किसी प्लैटिनम को ऐसे ज्वाइन किया डायरेक्टली। तो उसने पूछा जाके ये हम तुमको बोला था, तुम अब मेरा बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया। तो बोलता है तुम अभी क्या परसेंटेज में हो? तो बोलता है 9%। तो ये 2 साल पहले भी 9% में थे, अभी भी 9%, तो हम क्यों ज्वाइन करेंगे अब? ना दिस इज नॉट अ राइट आंसर दो, ओके, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते उसको। वो बोलता है इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ये प्लैटिनम है।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट हम लोग सोचते हैं दैट ग्रो नहीं करने से ओके। नो, इट्स नॉट ओके। क्योंकि आप, अगर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर ओके एटलीस्ट 9 to 12, 15, 12, 18 आपका ग्रुप रहेगा नहीं, क्योंकि आपका ग्रुप आपको देख रहा है आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। ओके, एटलीस्ट बीइंग अ फाउंडर प्लैटिनम, ओके एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, ओके, ये सब पिन को आपको जल्दी लेना है अगर आपका ग्रुप को मतलब मोटिवेट रखना है। सो remember one thing, the best motivator are the people at the upline, not Amway, not कोई नंबर्स, नथिंग। हम क्या कर रहे हैं उसका हिसाब से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये सब बड़े लीडर्स को देख रहे हो, ऐसा बहुत लीडर्स जो एमरल्ड एंड अप है इधर, ओके, वो भी सब श्योरली कनेक्टेड एंड एवरीथिंग। ये इन लोग का बिजनेस आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। इसका नंबर्स, इसका मंथली चेक, फाउंडर प्लैटिनम। सो अगर आप क्वालिफाइड फाउंडर प्लैटिनम्स के नीचे है, तो आपका पहला गोल है जल्दी ये पिन को हासिल करना। तो इसका मतलब है रियली वर्क विथ एन अपलाइन एंड मेक श्योर दैट आप 10,000 पीवी में जितना जल्दी हो सके आ जाइए। ओके, अगर आप एकदम नया है तो आपका ये साल का गोल है टू गो एटलीस्ट बीबीआई विथ अराउंड 4,000 पीवी इज आपका इनकम इज 50,000 रुपीज अ मंथ। सो ये एकदम बहुत, अगर कोई प्रेयर कर रहा है अभी, द ओनली प्रेयर इज बीबीआई टू प्लैटिनम, और ऑफ कोर्स उसके पहले एसएसआई बीएफआई है, लेकिन वो जल्दी खत्म करके, मतलब करना भी है ऐसा नहीं है, योर गोल इज टू गो बीबीआई टू प्लैटिनम। और जो भी आप गेम प्लान कर रहे हो, एवरीथिंग शुड लीड टू बीबीआई टू प्लैटिनम। ठीक है, समझ गया? तो इसके लिए, बिकॉज सी वन थिंग विच आई विल टेल यू, लॉट ऑफ पीपल से, अच्छा इसका सक्सेस रेट क्या है? 0.51% ऑफ प्लैटिनम। क्यों? क्योंकि हर 100 लोग में और हर 150 पीपल में एक प्लैटिनम होता है, राइट? वही तो होना चाहिए, राइट? एक प्लैटिनम का ग्रुप में कितने लोग हैं? एटलीस्ट 100 एक्टिव पीपल, 100 to 150। तो अगर आप परसेंटेज ले लो तो 1% ही होगा ना, 1/100। उल्टा तो नहीं होगा। 100 पीपल, जस्ट सोचिए, इधर में अगर 20 डायमंड है, ओके, और बाकी 1,000 लोग, 2,000, 3,000, 4,000 लोग है, तो अगर उल्टा है 4,000 डायमंड और 20 लोग, होता है क्या? सो जब लोग बोलता है ना स्टैटिस्टिक्स, कितने लोग डायमंड बनता है, कितने लोग एमरल्ड बनता है, कितने लोग प्लैटिनम बनता है, इट ऑलवेज इज 1%, 0.5%, क्योंकि यू नीड सो मेनी पीपल टू गो प्लैटिनम। सो ये क्वेश्चन इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, so understand one thing, that you have to be that 1% in everywhere। अगर ऑर्गेनाइजेशन देखिए, ओके, अगर एवरीवेयर देखिए, जॉब में ओनली few % पीपल गो टू द टॉप, क्योंकि ये लोग का अलग एटीट्यूड है, अलग माइंडसेट है, अलग चिपसेट है, जो अलग सोचता है। ग्रोथ 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 ग्रोथ। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so number one, you have to learn lot of contacting skills। ये बिजनेस आपने बहुत कुछ सुना अभी तक। ओके, ये बिजनेस में हमारा कुछ नहीं करना है, हम लोग का कोई रिस्क नहीं है, कोई टाइम स्लॉट नहीं है। जब भी आपके पास लैपटॉप है, एक फोन है, आप बिजनेस में हो। एक वाईफाई कनेक्शन और एक सेलुलर कनेक्शन, आप बिजनेस में हो। आपके पास कोई प्रोडक्ट का वेयरहाउस नहीं है, आपके पास नो एम्प्लॉइज, नो स्टोर, नो इनकम कैप। कितना इनकम आप कर सकते हो आप डिटरमिन कीजिए। जितना आपका ड्रीम है आप उतना इनकम कर सकते हो। अगर आप सोचते हो 5,000 बनाएंगे, 5,000 बना सकते हो। 50,000 बनाएंगे, 50,000 बना सकते हो। 5 लाख बनाएंगे, बना सकते हो पर मंथ। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका
ड्रीम, आपका ड्रीम इज डिपेंडेंट on how your work ethic, your work, your business is dependent on your dream. So it is very important to understand that हम लोग को कुछ नहीं, नो इन्वेंटरी, प्रॉफिटेबल राइट अवे. अब सोचो पहला दिन से प्रॉफिटेबल, एक भी प्रोडक्ट कोई आपको आपने दिया, आपका ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, रिटेल प्रॉफिट अगर नहीं होगा, पीवी चेक मिल गया, तो ऐसा बिजनेस तो है ही नहीं. सो पर्सनली मतलब आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो. ओके, मेनी ऑफ द पीपल हियर हैव लर्नड लीडरशिप. हमने तो इसका पहले लीडरशिप क्या था मेरा मालूम नहीं था. ओके, आई डिडंट नो हाउ टू थिंक, आई डिडंट नो हाउ टू बी पॉजिटिव. हमने तो बहुत पेसिमिस्ट थे. हम सोचा हर चीज टूट जा रहा है. ओके, आई लर्न मार्केटिंग. सो ये बिजनेस आपको एक नया, इट्स लाइक अ मिनी MBA जो हमको सिखा दिया. सो आप सोचिए तो हमको क्या करना है. कोई बोलता है मेरे को पिन भी दे दो ना प्लेटर में, हमको ALS भी दे दो, तो उसके तो आपको क्यों चाहिए, तो एक रोबोट लगा के कर देंगे. तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट, आई ओनली हैव टू क्रिएट कम्युनिटी, I only have to create traffic, I only have to create footfall, I only have to create numbers. And कितने लोग का है, इतना crore of people है. Okay, 100 crore or something, 1 billion people in India, और हमको उधर से कुछ लोग को लाना है. आपका मार्केट, आपका दुकान ऑफ पीपल, आपका रॉ मटेरियल करोड़ों है, करोड़ों. So अभी आप सोचिए that all I have to do is I have to open my mouth and learn how to contact people. Okay, और इसके लिए जो भी करना है, माइंडसेट, बुक रीडिंग, प्रोस्पेक्टिंग स्टाइल्स, और कैसे उसको नेक्स्ट थिंग आपको लर्न करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कॉन्टैक्टिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स. दिस बिजनेस इज आर्ट ऑफ प्रमोशन एंड प्रेजेंटेशन. अगर कोई मेरे को बोलता है ये बिजनेस क्या है, आर्ट ऑफ प्रमोशन एंड प्रेजेंटेशन. प्रोमोट करो प्रोडक्ट, प्रोमोट करो सिस्टम, ओके, एंड लर्न हाउ टू प्रेजेंट द प्लान. सिंपल. आप लोग ये मीटिंग में क्यों आए, क्योंकि आपका अपलाइन ने प्रोमोट किया. जो प्रोमोट नहीं किया उसका डाउनलाइन है नहीं. वो खुद बैठा है लेकिन उसका डाउनलाइन नहीं है, क्योंकि उसके प्रोमोट नहीं किया. प्रमोशन एमवे देता है, जो प्रमोट करता है उसका डाउनलाइन का पीवी होता है, जो प्रमोट नहीं करता है, जो खुद पढ़ता है उसका पीवी नहीं होता है. वेरी सिंपल. द होल वर्ल्ड इज अबाउट प्रमोशन. एंड नेक्स्ट इज बेसिकली प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंटेंट. आप क्या प्रेजेंट करते हो. आप ये डायमंड लोग को सुना, कैसे प्रेजेंट किया, कंटेंट देखो. किरीटी जब वो बात कर रहे थे उसका जो स्टोरी, सब कुछ सोच के का प्रेजेंटेशन विदाउट प्रिपरेशन लीड्स टू अ वेरी डल एंड प्लान. ऑलवेज prepare. All good leaders, they prepare. Lot of people say I don't prepare anything, I talk from my head. That's not a credit, क्योंकि आप किसी लोग का लाइफ के लिए खेल रहे हो. अगर हमने प्रिपेयर नहीं किया और इधर में बात करना शुरू किया 1000, 2000, 3000 लोग को, तो उसका मतलब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं. हम सोच रहे हैं देखो हम कैसे स्टेज में मार देंगे. ये ऐसा नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसलिए प्रिपेयर बिफोर यू प्रेजेंट विथ टोनैलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज. आपको सीखना पड़ेगा आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे होता है. ओके, आपको सीखना पड़ेगा बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्ट्स पीपल. अगर कोई भी शो आप देखेंगे, कपिल शो और एनी शो जो नंबर 1 रेटेड है, आप उसका हाथ पैर का मूवमेंट देखिए. ओके, और अगर आप जूम, और ये तो टीवी है ना, सो टीवी में जब ऑडियंस देखते हैं, सेम लाइक सिटिंग इन अ जूम, राइट. सो टीवी का परफॉर्मेंस देख के टीआरपी रेटिंग कैसे बढ़ता है, उसका फेस अपीयरेंस.
उसका एक्सप्रेशन, ऑल दिस आपका ऑडियंस को अट्रैक्ट करके रखेगा। सो 45 मिनट्स अगर आपका प्रेजेंटेशन है और उसमें 5 मिनट में बोर हो जाएगा, तो उसका मतलब है आपका अपीयरेंस, एक्सप्रेशन, टोनालिटी, वॉइस आपको सीखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे ऑल्सो से समथिंग लाइक, इसको आई थिंक मेरा एक टॉक था प्राइमिंग करके। प्राइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमिंग का मतलब है पानी आने का पहले ओके आप थोड़ा पानी दे दो, उसके बाद पूरा पानी आ जाता है। जब मेरा पंप वो प्रॉब्लम हो रहा था मेरा घर में कलकत्ते में, तो हम थोड़ा पानी पहले दे दिया, उसको प्राइमिंग बोलता है। इधर में भी प्राइमिंग करना है। प्राइमिंग का मतलब है आपका स्मॉल टॉक, आपका अपना स्टोरी। जैसे हमने वो स्टोरी बोला था दैट कोई किसी ने दुकान में गया और बोलता है मैं आपके पास क्या है, मेरा बहुत भूख लगा है। बोलते मेरे पास इडली है। तो बोलता है कितना मतलब ये इडली मेरा भूख ठीक कर देगा? बोलता है एकदम ठीक कर देगा, आपका भूख चला जाएगा। तो बोलता है ठीक है एक दे दो, दे दिया। उसके बाद बोलता है और एक दो, ओके ऐसे करके वो 4-5 इडली खा लिया। 6th वन जब खाया तो बोलता है अभी मेरा भूख मिट गया। तो बोलता है इडली का प्राइस क्या है? बोलता है सर आपका टोटल हुआ 100 रुपया। बोलता 100 रुपया मतलब आपने तो बोला एक इडली का 20 रुपया। बोलते हाँ लेकिन आपने तो 5 खाया, 6 खाया, ओके 100 रुपया 120 रुपया हुआ। तो बोलते हाँ लेकिन आपने तो 6 खाया। बोलते नहीं आपने बोला था जो इडली मेरा भूख ठीक करेगा उसका प्राइस है 20 रुपया। तो इसका मतलब है वो बोल रहे हैं मेरा 6th इडली में मेरा भूख चला गया, सो हम वो 6th इडली का पैसा देंगे। तो इसका मॉरल क्या है? दैट 6th इडली में भूख चला गया लेकिन उसके लिए 5 इडली खाना पड़ा। 6th इडली कैन नॉट बी द फर्स्ट इडली। सो इट्स लाइक कोटिंग अ मैरिज। आपको जब फर्स्ट टाइम आपने कांटेक्ट किया किसी को, आप उस दिन नहीं बोल सकते आई लव यू। आप उस टाइम नहीं बोलते हो हम तुम मेरे को शादी करोगे। देयर इज अ प्राइमिंग। सो सेम वे मार्केटिंग में क्या होता है, आपको प्राइमिंग करना है। आपको पहला मीटिंग में, सेकेंड मीटिंग कैसे आपको ये जो है कब वो हाँ बोलेगा। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल क्या होता है वो 5 में इडली में जाता है लेकिन 6 में नहीं जा सकता है। और कुछ लोग एकदम 6 में शुरू करता है, ओके तुम प्रोडक्ट लोगे, वो प्रोडक्ट पोस्टर दे देता है वो प्लान में ही, ओके। तो ये जो प्राइमिंग है इसको बोलता है साइकोलॉजी। और वो प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आपके पास है, आप हर लोग को स्पॉन्सर करेंगे, हर प्रोडक्ट आपका बेच देंगे, हर मीटिंग आपका सक्सेस होगा, क्योंकि आपको पता है प्राइमिंग कैसे करना है। और इसके लिए आपका अपलाइन के साथ you have to be mentally and psychologically attached to a mentor, not just मतलब you have to think how my mentor can think. हम always is to think that how Kanti will do this situation. Kanti always say how Bilbit will handle this situation. Okay, क्योंकि मेरा ब्रेन से जो हो पाया हमने कर लिया, तो अभी मेरे को कोई और ब्रेन चाहिए। Okay, so that is where the mentorship comes into picture. Okay, you have to always remember this. To be a mentor, you have to be a friend first. आप मेंटर नहीं हो सकते हो अगर आपने ट्रस्ट नहीं बिल्ड किया। ओके, लोग बोलते हैं मेरा डाउनलाइन मेरे आके मेरा ओपन नहीं करता है। ओपन क्यों करेंगे? आपको पहले ट्रस्ट होना चाहिए दैट आप इनका रियल फ्रेंड है। ओके, आपका कोई, क्योंकि आजकल क्या होता है कभी कभी डाउनलाइन ज्यादा ग्रो कर लेते हैं, अपलाइन ने ओके वो जेलस हो जाता है, कभी कभी क्रॉस लाइन हो जाता है, तो उसमें वो ट्रस्ट कैसे करेगा? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मेंटरशिप. Mentorship is absolutely about creating the trust so that so anyway, so earn the trust. Okay, and then also like stay away from gossip and don't open mouth here and there. जैसे एक स्टोरी था ना, एक lion came and he found a donkey and said, hey, मेरा मुंह पे कोई बदबू है? बोलता हाँ है।
तू कैसे ऐसा ये हो गया, इतना इंसोलेंट हो गया, एक मारा उसको मर गया. उसके बाद then he went and then he found another like a dog, like a monkey or some, okay, out there. He said, hey, मेरा मुंह पे बदबू है. वो देखा that वो उसने मार दिया उसको, डोंकी को. तो उसने बोलता, नहीं महाराज, आपका मुंह पे कोई बदबू है. तू झूठ बोल रहा है. मार दिया उसको. उसके बाद वो देखा और एक ये जा रहा था, एक डियर. उसको बोलता, ए मेरा, उसने देखा है क्या हो रहा है. तो जब उसको पूछा, मेरा मुंह में बदबू है, बोलते हैं मेरा तो नाक बंद है, हम तो नहीं, हम मेरा आइडिया नहीं है. बोलते हैं हाँ ठीक, ओके, छोड़ दिया. कभी कभी अपना मुंह बंद करना, क्योंकि मुंह खोलने से प्रॉब्लम हो जाता है. कुछ लोग ऐसा है, कुछ कमेंट करना ही है, गॉसिप करना है, चुप सुनो लेकिन कमेंट मत करना. That way you will be having more friendship, more relationship, no cross lining. Okay, cross line is your friend but not your mentor. Okay, that's very, very important. Okay, then the next thing also you have to think is about fear of perceived failure. Lot of people पहले से सोच लेता है perceived failure, पहले से. कोई मेरे को बोलता है, how do you know I will succeed? I say, how do you know that you will succeed in your marriage? इतना पैसा दिया तुमने. How do you know what? लोग 10 साल के बाद डिवोर्स हो रहा है, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद. वो जब शादी किया, अगर वो बोलता है नहीं हम 10 साल पहले देखेंगे उसके बाद शादी करेंगे. So how can you say that what will happen in your MBA business? अरे शुरू करो ना, कुछ करो. How would you know 5 years के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा? इसका मतलब है people have perceived failure. Remember, 95% of time in entrepreneurship is boring. लिख लो, 95% of the time in any business is waste. Is a regular routine job. 5% is productive, and that's entrepreneurship. 5% of work is entrepreneurship. So don't think that every day आपका वो entertainment होगा Zoom में. Okay, every time it's meeting, like 9 core steps, 4 basics, 3 powers, cardinal rules, ये. Okay, this is 95%. जब जॉब पे लोग जाता है, पहले उसने वो साफ करता है, चाय पीता है, कंप्यूटर, it's a routine job. हम लोग क्या होता है, कुछ टाइम के बाद बोर हो जाता है. ओ सेम बुक, सेम रीडिंग, और क्या तुमको क्या करना है अभी? डॉक्टर वो 20 साल पहले जो कर रहा था अभी भी कर रहा है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक. ओके, सो इट्स पर्सनल ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन योर your business growth stops when your personal growth stops. Okay, so it is very important that keep yourself up to date with the trend. अभी ट्रेंड क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस. लर्न एवरीथिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस. CoQ10 क्या होता है? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? लोग का एंजाइटी क्यों होता है? Why people have fine lines and wrinkles and hyperpigmentation? ओके, हाइलोरॉनिक एसिड क्या होता है? ये विटामिन सी क्या करता है स्किन में? ये ग्लिस्टर, why is the number 1 toothpaste? Why we have all this best body butter and everything? Learn about the products, make the trend your friend. ओके, लाइक जब ये बोल रहे थे हमारे, ओके, कोई मेरे को पूछता है इतना विटामिन क्यों, इतना विटामिन क्यों, आपका इतना ऑर्गन क्यों? आपको एक ऑर्गन होने से तो आपको एक विटामिन चाहिए. अगर आप अर्थवर्म हो तो आपको और कुछ नहीं चाहिए. ओके, आप ब्रेन से लेके आप आंख से आप सुन सकते हो, कान से देख सकते हो. जो ल्यूटिन है वो खाली आई में मिलता है, किडनी में नहीं मिलता है. तो आप ल्यूटिन खाओगे तो किडनी ठीक हो जाएगा. बिलबेरी ल्यूटिन आइस के लिए है, मिल्क थिसल लिवर के लिए है, वसका अपर रेस्पिरेटरी है, मधुनाशिनी वर्क्स ऑन रेगुलर appetite control. Okay.
ओके, ये सब सीखना है, हाउ इट इज। ओके, जैसे हमारा अर्जुन ने इतना अच्छा कवर किया दैट सुबह उठ के सब लोग कीड़ा मकोड़ा को खिलाते हैं, बर्ड को खिलाते हैं, हम लोग अपना बैक्टीरिया को खिलाते हैं। हमारा पहला काम है बैक्टीरिया को खिलाना। सो पहला फर्स्ट प्रोडक्ट इन द होल डे इज फाइबर। क्या अच्छा समझ आया? इसको खुश रखो, बैक्टीरिया को खुश रखो, आपका दिन खुश है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट शुड बी योर प्रोटीन, क्योंकि दैट्स द नंबर 1 मैक्रो, and then you should be taking your daily plus, then your omega, then your targeted supplement, CalMACDs and everything. Learn those products. ऐसा होना चाहिए जैसे आपके पास कोई जाएगा, आपका मुंह से निकल आएगा knowledge. Make trend your friend. Health and wellness is the next miracle. Okay, people are going out of pharma into holistic because of the side effect. आज ही अमेरिका में 2 प्रोडक्ट को निकाल दिया FDA ने, and those 2 products are one of the best cheese. बोलता है it can cause death. It's not like you can fall sick, it can cause death. And people have been using वो cheese for years. अर्जुन ने बोल रहा था that हमारा प्रोडक्ट जो चिल्ड्रंस जो ड्रिंक होता है, मतलब नॉट हमारा न्यूट्रलाइट का, बाहर का प्रोडक्ट, उसमें भी एडेड कलर्स है। लोग बोलते हैं नहीं बट कम दिया। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कम दिया, कम पॉइजन दिया, ज्यादा नहीं दिया, कम दिया। अब कह रहे हाउ कैन समबडी प्रोमोट कोका कोला एंड पेप्सी? आप बोलो, इतना बड़ा सब फिल्म स्टार सेलिब्रिटी वो पेप्सी प्रमोट कर रहे हैं, कौन पेप्सी खा के अच्छा रह रहे? आप बोलो पेप्सी और कोक में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, और वो हम प्रमोट कर रहे हैं लाखों करोड़ों पैसे के लिए। और हम लोग क्या प्रमोट करते हैं? हेल्थ, वेलनेस, नॉट इलनेस, वेलनेस। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड प्लेसिबो एंड नोसिबो। प्लेसिबो का मतलब है आई विल बी ओके। इफ यू आर पॉजिटिव, आपको शुगर पिल चाहिए और शुगर पिल में आप ठीक हो जाओगे। और अगर आप नोसिबो इफेक्ट, इट्स अ रियल इफेक्ट, यू कैन स्टडी। प्लेसिबो इफेक्ट मींस दैट अगर कोई बंदा वो कोलेस्ट्रॉल पिल के बदले में शुगर पिल दे दिया और उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, क्योंकि वो मेंटली वो एक्सेप्ट किया, अरे ये पिल में मेरा ठीक हो जाएगा। I know homeopathic doctor says that if you have any negative about a medication, don't take it, वो काम नहीं करेगा। Nocebo effect is I will never be okay. जो भी करो I will not be okay. कुछ लोग ये बिजनेस में all the time, my business is not going anywhere, कोई मेरा बिजनेस में ज्वाइन नहीं कर रहा है, I don't know कितने साल हम बिजनेस में हैं, पैसा नहीं कर रहे। आप उसको देखो, वो नोसिबो इफेक्ट, वो जिंदगी में वही करते 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 एक दिन गया। सो ये 2026 में आपको ऐसा इफेक्ट करना है। व्हाट आई एम डूइंग इज ऑसम। एवरी प्लान आई शो इज अ स्पॉन्सर। एवरी डे द वॉल्यूम विल कम इन। आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम ऑसम, आई एम एक्साइटेड। आप देखो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, वर्क एथिक। इवनिंग में घर पे कौन रहता है? बच्चा, क्रिब में। और अगर आप इवनिंग में घर पे हो, मतलब जॉब अगर है जो, तो उसका मतलब अब बच्चा इन अ क्रिब। ओके, एवरीबडी हु इज अ बिजनेस पर्सन, ABO, is out in the evening, either showing plan or doing product demo or doing health show or doing home meeting. Only bachas are in the house. So you decide yourself, am I a bacha? Bacha? Nahi, I'm adult. So if I call you at 7 PM or 8 PM, 8:30, और अगर आपको घर में दिखाई देगा, कांतिकाला used to say, कुलिन देसाई वो अपना गाड़ी
पार्किंग सामने से निकाल देता था। बोलता है अगर वो उसको समझेगा वो घर में है, घर में क्या कर रहे हो, यू शुड बी इन समबडी एल्सेस होम। अगर आपको प्लैटिनम, अगर आपको 9%, 3%, 6%, हम लोग रिंगा रिंगा रोज ऐस खेलेंगे, हर पिकनिक करेंगे, मजा करेंगे आपको, लेकिन आप कभी जिंदगी में ये सुभाषिजन सुजाता और और अचिता श्वेता का टीम बनाएंगे नहीं। आपका कभी लीडरशिप नहीं होगा, आपका खाली फैमिली रियूनियन होगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, people will follow people who are doing something worthwhile. People will follow people who are doing something worthwhile. Very very important. Okay, in fact, some people, I was saying, how do you know what is going on with your cross line if you are not following them? How do you know? कुछ लोग क्रॉस लाइन के बारे में सब कुछ मालूम है, उसका कितना लोग है, इसका कितना लोग है, वो कितना लोग है, उसका घर में क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ? दैट मीन्स तुम्हारे दोनों का कोई है वो एकदम, दैट कैन स्टॉप ओके योर कंप्लीट बिजनेस माइंडसेट एंड एवरीथिंग। ओके, see, 20 times login to Zoom is not building the business. 20 times login to Zoom in a month is not building business. And I'm telling you, all the people who are non-platinum, founder platinum, founder platinum and up, okay, go out there. But I'm telling you, if you are only logging into Zoom of your upline and coming back, logging to Zoom and upline and coming back, logging to Zoom and said, oh, I'm doing, no, it's not business. Two issues that stop a business. Not enough with dream lost. Not enough with dream lost. 2 weeks. Okay, jaldi jayenge. Okay, I think downline should see commitment. Keep constant touch with constant touch, as I said, with the products, with customers. Constant touch with customer. Customer is like family. ABO के जैसा आप टच रख रहे हो, कस्टमर के साथ टच रखो। फैमिली, देयर बर्थडे, देयर एनिवर्सरी, बच्चे का ये हुआ एंड ऑल दोस, बिकॉज दे आर बेसिकली इज योर बिजनेस। अगर कस्टमर से आपका इतना वॉल्यूम आ रहा है, डोंट कॉल देम एट द एंड ऑफ द मंथ, कितना वॉल्यूम, ओके, पहले से जस्ट जनरली टॉक। आई थिंक गीता दी टॉक्ड अ लॉट अबाउट दैट, बट नॉट जस्ट ABOs, customers, very important. Be united. Scissors needle को बोल रहे, ओके, सुई को बोलते तेरे को सब सर पे रखता है ऊपर और मेरे को नीचे रख देता है, कोई देखता भी नहीं। ओके, अगर तेरे को देखता है तो ऊपर रख देता है, क्यों? बोलता है सीजर्स को, बोलता है तू कट करता है और हम जोड़ता है। So so don't be a scissor. Okay, also remember, best stories are not always awesome, exciting all the time. All the great movies जो देखोगे, जिसमें always there is challenge in the beginning and the win at the end, right? So if you are going through some situation, great, you are creating a hero, you are becoming a hero of your story. वही तो हमको अच्छा लगता है ना, बाहुबली. So that's awesome. Okay, no ego. You have no idea कब आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा, राइट? वो फ्लावर और स्टोन, राइट? और स्टोन उधर में है और फ्लावर बोलता है देख, हमको सब ऐसे कैसे करते हैं, तेरे को तो कोई पूछता ही नहीं। तो एक बंदा, ओके, ये आया, एक को सडनली वो ढूंढ रहा था एक अच्छा पत्थर, कि वो पत्थर को लेके उसने एक मूर्ति बना दिया, और उसके बाद वो फूल ढूंढ रहा था और गार्डन में लेके वो फ्लावर लेके उसका चरण में डाल दिया। तो उसके बाद बोलता है देख, एक दिन तेरे को ऊपर लोग जा रहा था, अभी आई एम एट योर फुटस्टेप। सो कभी कभी फ्लावर स्टोन हो जाता है, स्टोन फ्लावर हो जाता है। को नो ईगो दैट आई हैव दिस, आई हैव दैट एंड एवरीथिंग, क्योंकि बिजनेस चेंजेस। पेंडुलम अभी ऐसे जाता है, पेंडुलम कभी ऐसे जाता है। इतने साल हमने बहुत बिजनेस देखा, होल इंडिया में, होल वर्ल्ड में। सो नो ईगो, ओके, वट एवर वी हैव इज ब्लेसिंग, इज अ ब्लेसिंग, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
you know, sometimes we think that हम लोग किया है ऐसे, okay, like एक रेस्टोरेंट में एक मैनेजर, ओके सब लोग आ रहे हैं और एक बंदा वो खा के पैसा नहीं देके चला जा रहा है, तो बाकी लोग बोलता है दैट यू नो इसको तू पकड़ता क्यों नहीं, तो बोलता है नहीं हम ऐसे छोड़ देता है उसको, तो क्यों, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रेस्टोरेंट और भी बढ़ गया और वो बंदा हर दिन एक टाइम में आता है, खा के चला गया, डबल ट्रिपल हो गया, और ओनर आया वो तो बहुत एक्साइटेड है, तो उसको जाके वो बोलता है देख कैसे रेस्टोरेंट भर गया, वो दिखा रहा है मीडिया को, तो मैनेजर को पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट इज, हाउ डिड यू डू इट, ओके, और ये कौन है, वो बोलता है ये बंदा एवरी डे आफ्टर ईटिंग गोज इन द बैक एंड प्रेज दैट ये रेस्टोरेंट का इतना बड़ा कर दो सो दैट हम जब निकल जाएंगे कोई देखेगा नहीं। किसका प्रेयर कैसे काम करता है, नो आइडिया। ओनर थॉट ये हमारा काम है, लेकिन एक्चुअली ही वाज द वन हु डिड इट। कभी कभी आपका बिजनेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटी, somebody else. So don't have that thought process that I am the magic, because अगर आप मैजिक हो then you will not have a business for a long time. So kind of going to the, we don't have a lot of time, fall in love with mundane activities. Okay, decision making is like, I think Supana was mentioning about decision making. Make the decision, but maintenance of decision is most important. 4 months of crazy work ethic, 4 months of crazy, it doesn't matter आपका क्या है, next 4 months of crazy work, 4 basics will change everything. Okay, your excitement, there is excitement volume plus real volume and core volume, so you have to remember that. Okay, I will just tell a little bit of some little other mindset. Okay, don't put yourself in a boundary. As I was mentioning, that Amway is not how long you are in the business. Write it down, you will be so happy tonight. Amway is not how long you're in the business, but what you do in the next 100 days. Next 100 days, you can change everything with the crazy work ethic. So don't look back. Next 100 days is your business. And you will be amazed. Okay, somebody said, I believe in astrology, but not astrologer. Leader's vocabulary is about everything about talking positive. Okay, cardinal rules, very important, very important. Okay, as somebody said, no snatching. No, don't do something that bother, because it is very, very tough to for snatching and everything and all those. Learn that if you snatch, you will see that person will not do anything at the end. So very careful, all those different things. But as I said, okay, leaders just don't do steps, they get results. Okay, and Amway product, to me, Amway product is just an excuse to get into somebody's house, किसी का घर में जाके उसका life transform करना. Okay, so as we finish, I will just telling you that counsel. Even if you have nothing to say, still, अगर आपको 90% time अपने joke करके आ गया, लेकिन फिर भी you will get a mindset. Don't say anything that I have nothing to say, so what do I do? That's the reason you should go. I think Shashwati talked about it. Very important. Okay. So, another thing, keep drawing your LOS every day. Keep drawing your structure every day. Every day, जब आप अकेले बैठे हो, अपना structure draw करना. But TD, I don't have. That will talk to you. कहाँ काम करना है और अगर मेरे को वित्त कैसे जाना है. जब भी आप अकेले हो, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर. मेरा बुक के बाद बुक खत्म हो गया, खाली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं.
So, there was, I actually, there many years ago, there was a man, okay, and I always believe that this kind of tells you about a leadership, a man who was working in a railway line in a small town. Everyday job was very simple. क्या था, वो जब लास्ट ट्रेन चला जाता है, he will walk the track, checking bolts, bolt वो जो है सब एंड सिग्नल सब ठीक है, वो टाइट फाइट करके आ जाता है. कोई उसको वॉच नहीं करता है, कोई कैमरा नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, उसमें लिखा है हमने ये किया, पिक्चर, जस्ट डार्कनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वन नाइट एग्जॉस्टेड हो गया, टायर्ड, कोल्ड, ठंडा, ही नोटिस समथिंग, कुछ अनयूजुअल है. वन बोल्ट स्लाइटली लूज, लेकिन ऑलरेडी द लास्ट ट्रेन पास्ड. ओके, लेकिन अगर उसको टाइट करना है तो उसको 1 माइल ज्यादा वॉक करना है. लेकिन ही स्टॉप्ड, नोबडी विल नो, अभी सो जाएंगे. बट देन he went and tightened the bolt anyway. Next morning, the town woke up, shocking news. इतना storm हुआ that a landslide during the night, okay, जो loosened section of the track था, was hit. And अगर वो bolt loose नहीं था, अगर वो loose रहता, the first morning train would have derailed, killing hundreds of people. So hundreds of lives saved. No medals were given, no headlines written. Most people never knew naam kya hai. But the man went home, hugged his family and slept in peace. Because usne kiya when no one was watching. So in business, in leadership and life, success is not bolna, kya kar raha hai, is not built by people when they are applauding. Aare kya kiya. Success is going that extra mile. रात को अगर कोई नहीं देख रहा है, okay, when no one is watching, no one is clapping, no one even knows, that is जब character बनता है, that is when trust बनता है, and that is where lasting success बनता है, and that is what will make you a leader. जब nobody is watching, you are doing it. I'm so proud of this leadership. I'm so excited. And I want to, of course, Ashitavada Shetadi, of course, is the main couple in this. But I will specially also thank Shubhashish, Shujata. Shubhashish, ये पूरा मीटिंग को schedule बनाना, schedule, ये कौन होगा, ये होगा, Excel spreadsheet, going back and forth and everything, working as real, like the team as a family. Surrounded by unka leaders and core group. Okay, I'm so proud of the leadership just usne liya or made this whole thing happen along with the technical team and everybody. So proud of you, ADSD team. Okay, we are blessed to have you in our life, in our organization and everything. So go Diamond,